ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। एंड इन लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चरलिज्म में रसियन फॉर्मूलाज, एंड देयर आफ्टर टुडे इन दिस लेक्चर we will be discussing over different individual critics and theorists. Okay, so the first critic and theorist in this list is going to be that is Roman Jakobson. Okay, so Roman Jakobson was born in 1896 and he was a key figure in structuralist criticism. And he was born in 1896 and died in 1982. And he was born in Russia, and sometimes he worked in America. He was a linguist and a literary theorist, especially related to structuralism. Okay, and he is considered as the pioneer of structuralist linguistics. ठीक है, means structural linguistics जो है उसके pioneers में इनको काउंट किया जाता है. Ron Jacobson distinguishes 6 communication functions. 6 communication functions के विषय में इन्होंने बताया, and each 6 is associated with the dimension or factor of communication process. तो communication process के through रोमन जैकबसन ने 6 communication functions की बात की. So these communication functions must be understood with this help of this image. And here you can see that there is sender and receiver, and there are 4 elements related to message, that is context, message, channel, and code. Just remember that in any conversation, the first thing, I think you have studied this thing well in paper 1. So try to understand that in any conversation, the first and foremost thing that is important is context. Means there must be some context in which the communication is going to be. Means वो एक context होना चाहिए जिस context में बातचीत होगी. Then context will need to be encoded as message. Then second point comes as message, and this message is encoded by the sender. There must be a sender, and the sender will encode the context into a message, and the message has to be sent, has to be conveyed to the receiver. Context है, context को sender ने encode किया into a message, and the message has to be sent to the receiver. That is fourth element is receiver. And in this sending process of the message, when the sender has encoded the context into message, then he has to convey. In the process of conveying the message, the sender needs 2 things, that is channel and the codes. Codes are needed because in that codes the message, the context will be encoded to be submitted, and through the channel the message will be submitted to the receiver, and the receiver receive the message and give feedback to the sender, and the communication process will be completed. So remember these 6 factors discussed by Roman Jacobson. Clear? So next point we have to discuss one other point that is very important from Roman Jacobson. Just note down here. That is according to Roman Jacobson, all meaning in poetic, all meaning in poetic language is the result of
a metonymic combination. And metaphoric selection. Metonymic combination and the metaphoric selection. Okay, so remember these 2 points, that is metaphoric selection and metonymic combination. So let's move ahead, and the next critic we're going to take up is Vladimir Propp. The complete name of Vladimir Propp is Vladimir Yakovlevich Propp. Okay, he is also a Russian, and he was born in 1895. He was born in 1895 and died in 1970, and he was a folklorist and a scholar. He was a folklorist and a scholar, and he was from Soviet, that is Russia. Okay, and he is famous for his work, Morphology of Folk Tales, and this Morphology of Folk Tales was originally published in Russian language in 1928, but it was not paid attention, it was not noticed in the West. In the West means in the European countries, uh, until it was translated into English in 1958. Okay, so just note down one another point about this morphology of folktale or this folktale. So this point is that his analysis of the folktale is his analysis of folktale tale is a classic example of structuralist criticism structuralist criticism at work. Okay, this work is an example of structuralist criticism. And here in this work, note down the second point. In this work, he locates seven. He locates seven key performers who create seven spheres seven spheres of action. Okay, and all fairy tales, next point is that all fairy tales can be reduced to can be reduced to a set of seven characters,
who generate the entire plot through their various relationships. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने 7 जो है कैरेक्टर्स को फाइंड आउट किया और कहा कि दैट इज ये 7 कैरेक्टर्स हैं जो कि लगभग सभी फेरी टेल्स में आएंगे और इन्हीं का जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन होगा वही रिलेशन क्या करेगा इसको मींस कि किसी भी फेरी टेल की किसी भी जो फोक टेल होगी उसके पूरे प्लॉट को जो है डेवलप करेगा, मेंटेन करेगा। ठीक है, तो ये 7 कैरेक्टर्स हैं क्या, इनको हम लोगों को लिख लेना चाहिए। ठीक है, लेट्स नोट डाउन द 7 कैरेक्टर्स। तो लिखिएगा द 7 कैरेक्टर्स आर, द 7 कैरेक्टर्स आर, जो 7 कैरेक्टर्स हैं, नंबर 1 हीरो। कोई भी फोक टेल होगा, कोई फेरी टेल होगा, उसमें एक हीरो होगा निश्चित रूप से। ठीक है, सेकेंड विल बी फॉल्स हीरो। फॉल्स हीरो का मतलब है कि एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो दिखेगा हीरो जैसे बट एक्चुअली विल नॉट बी हीरो। एंड द थर्ड वन विल बी नंबर 3 विलेन। बिना विलेन के कोई कहानी कैसे पूरी होगी। एंड द फोर्थ विल बी अ डोनर और प्रोवाइडर। देखिए यहां से कुछ इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि ये पूछ सकता है कि 4 की लिस्ट दे दिया और पूछा कौन इन 7 में से नहीं, या फिर 4 ऐसे दे दिए उनमें से ऑड वन फाइंड करने को बोला कि कौन सा नहीं था। तो ठीक है, तो इस तरह की चीजें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर 5 जो है आप लिखेंगे हेल्पर। हेल्पर। नंबर 6 प्रिंसेस एंड हर फादर। प्रिंसेस एंड हर फादर। नंबर 7 डिस्पैचर। ठीक है, तो ये 7 कैरेक्टर्स जो है प्रॉप ने बताया एंड अकॉर्डिंग टू प्रॉप कि ये 7 कैरेक्टर्स हर एक स्टोरी में आएंगे एंड देयर वेरियस रिलेशन। ठीक है, इनका डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन जो होगा वो क्या करेगा, किसी भी स्टोरी का प्लॉट क्रिएट करेगा। एंड लास्ट पॉइंट लिख करके हम लोग नेक्स्ट राइटर पर, नेक्स्ट क्रिटिक पर मूव करेंगे। दैट इज प्रॉप आल्सो prop also identified fight 31 functions
functions to be found in every folktale. ठीक है, 31 नंबर यहाँ याद रखना है, नाम सभी का याद रखने की कोई जरूरत नहीं, वो आपके मतलब का नहीं होगा इतना, ठीक है। और इसलिए इतना जो है आपके लिए लगभग एनफ मटेरियल है। नेक्स्ट विल मूव टू मिखाइल बाख्तिन एंड हिज डायलॉजिज्म। दिस मिखाइल बाख्तिन, हिज डायलॉजिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, बिकॉज कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। So, Mikhail Bakhtin was born in 1895 and he was died in 1975. Okay, and a Russian philosopher. कौन थे ये? He was a Russian philosopher, literary critic, and scholar who worked on literary theory, ethics, and philosophy of language. His writings on a variety of subjects inspires scholars working in a number of different traditions like Marxism, semiotics, structuralism, religious criticism, etc., and in disciplines as diverse as literary criticism, history, philosophy, sociology, anthropology, and psychology, etc. ठीक है, तो इनकी जो राइटिंग है वो केवल स्ट्रक्चरलिज्म में ही नहीं, केवल लिटरेरी थियरी में ही नहीं, बहुत सारे फील्ड्स में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है। ठीक है, अब हमारे काम की जो चीज है वो ये है कि ही प्रेजेंट डायलॉजिज्म, ठीक है, इन्होंने अपनी थियरी दी किसकी? डायलॉजिज्म इन 1981। कहां पर? इन द वर्क द डायलॉजिक इमेजिनेशन 4 एसेस। इनका एक वर्क पब्लिश हुआ 1981 में और ये वर्क था डायलॉजिक इमेजिनेशन 4 एसेस। यहाँ पर इन्होंने डायलॉजिज्म के विषय में अपने विचार दिए थे, ठीक है। एंड देयर आफ्टर, जस्ट अ मिनट, एक पॉइंट याद रखिए कि डायलॉजिज्म है क्या, तो यहीं पर सबसे पहला लिखिएगा, डायलॉजिज्म टेल्स अस डायलॉजिज्म टेल्स us that meaning in any utterance is based on the social context। ठीक है, तो कोई भी जो मीनिंग है वो किस पर बेस्ड होगी? सोशल कंटेक्स्ट पर बेस्ड होगी। ऐसा कौन मानता है? ऐसा मानना है डायलॉजिज्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बाख्तिन हिमसेल्फ himself never used the term डायलॉजिज्म। ठीक है, तो इन्होंने डायलॉजिज्म जो टर्म है बाख्तिन ने यूज नहीं किया। ठीक है, कुछ इन्होंने वर्ड्स दिए, तो सम टर्म्स यहीं पर लिखिएगा, सम टर्म्स
given by Bakhtin. ठीक है, या इन्हीं को हम लोग बाख्तिनियन टर्म्स भी कह सकते हैं। तो कुछ एक टर्म्स जो है अबाउट 4 टर्म्स के विषय में हम लोग लिखेंगे 1 2 3 and 4। नंबर 1 आपको लिखना है डायलॉग। सेकंड वन इज हेटेरोग्लोसिया। थर्ड इज chronotope, and fourth one is carnivalesque। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि बाख्तिन ने दिए थे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। कार्निवालस को कार्निवाल भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड एंड let's discuss other terms in detail। So the first here is dialogue। So dialogue always implies a relationship। Okay, second point, dialogue is a concept that gestures that gestures at the mutual difference at the mutual difference at the heart of all convention, not convention but conversation, all conversation, all conversation. It asks us to pay. It asks us to pay attention to relations in language। ठीक है, तो डायलॉग क्या है? डायलॉग एक कॉन्सेप्ट है जो कि जेस्चर्स एट द म्यूचुअल डिफरेंस, जो म्यूचुअल डिफरेंस होता है, आपसी डिफरेंस होता है, उसको जेस्चर करता है। ठीक है, एट द हार्ट ऑफ ऑल कन्वर्सेशन,
ठीक है, जितनी भी कन्वर्सेशन होती है सारी कन्वर्सेशन, and it asks us to pay attention to relations in language. लैंग्वेज में जो रिलेशंस होते हैं उस पर अटेंशन जो है गेन करता है. लास्ट पॉइंट अबाउट dialogue is the central figure. Dialogue is the central figure of all speech, of all ठीक है स्पीच. देखिए स्पीच कोई भी होगी तो बिना डायलॉग के पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो ये हुई बातें अबाउट डायलॉग. ओके, नेक्स्ट टर्म इज हेट्रोग्लोसिया. नेक्स्ट इज हेट्रोग्लोसिया. ठीक है, हेट्रोग्लोसिया. अच्छा, हेट्रो मीन्स, देखिए इसको मीनिंग जरा समझिएगा. हेट्रो का मतलब होता है मैनी, ग्लोसिया का मतलब होता है स्पीचेस. ठीक है, एक टर्म आता है मैनी लैंग्वेजनेस. तो जो डिफरेंट मैनी लैंग्वेजनेस है उसी का एक जो डेवलप्ड टर्म है दैट इज हेट्रोग्लोसिया. तो हेट्रोग्लोसिया में लिखिएगा हेट्रोग्लोसिया इज heteroglossa is the simultaneity, the simultaneity of many levels of dialogue and language. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज और डायलॉग्स का जो यूज होता है किसी नॉवल में, किसी प्ले में, देन उसी को यहाँ पर क्या कहा गया, हेट्रोग्लोसिया. दूसरा पॉइंट लिखिएगा अबाउट हेट्रोग्लोसिया, दैट इज द नॉवेल is a prime example of heteroglossa. ठीक है, तो हेट्रोग्लोसिया का जो प्राइम एग्जाम्पल है वो किसे कहा गया, नॉवेल को कहा गया. और अगली बात क्या है, टर्म के विषय में लिखिएगा, द टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बाख्तिन. इंट्रोड्यूस्ड बाय बाख्तिन in his work discourse in the novel, discourse
इन द नॉवेल। ठीक है, ये इनका एक एसे था और इसी में इन्होंने इसका डिस्कशन किया, हेट्रोग्लोसिया का। पब्लिश कब हुआ था? पब्लिश्ड इन 1934। ठीक है, अगली बात लिखिएगा, इसी में ऐड कर लीजिए, इट वाज ओरिजिनली written in Russian language। ठीक है, इसको ओरिजिनली किस में लिखा गया? रशियन लैंग्वेज में लिखा गया था, और यहीं से जो टर्म निकला उसके ट्रांसलेशन में निकला, दैट इज हेट्रोग्लोसिया। सो यहाँ पर हम लोग इस क्लास को सम अप करेंगे। देखिए, अभी दो टर्म्स मिखाइल बाख्तिन में हम लोग और डिस्कस करने हैं, एक है क्रोनोटॉप और दूसरा है कार्निवलिस्क और कार्निवाल। ठीक है, तो इसको और इसके बाद एक लास्ट राइटर जिसको हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बीच की कड़ी समझते हैं, दैट इज नेक्स्ट जो हम लोगों को एक और समझना है वो है रोलैंड बार्थ, और उनके रोलैंड बार्थ के कुछ एक की कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी कॉन्सेप्ट्स और कोड्स को समझेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग मिखाइल बाख्तिन के जो दो बचे हुए और टर्म्स हैं, दैट इज कार्निवाल एंड क्रोनोटॉप, इन दोनों टर्म्स को समझेंगे। और नेक्स्ट हम लोग रोलैंड बार्थ, जो कि क्या है, एक मिड पॉइंट है या जॉइंटिंग कड़ी है किसके? स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मींस जिनके अर्लियर वर्क्स जो हैं वो स्ट्रक्चरलिज्म में काउंट किए जाते हैं, बट लेटर इन द लेटर फेज ऑफ हिज ओन लाइफ, in his own work he moved towards post structuralism and he opposes structuralist ideas and rules। तो एक क्लास और होगी, कल के लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म को सम अप करके देन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ ऊपर चलेंगे। थैंक यू फॉर द क्लास।